Okay. So there are 5 students. By the time 1 or 2 more people join, there are 9 people are supposed to be here. So by the time other joins, you can ask any question. Okay. So direction and screenplay writing. This particular class is meant for direction screenplay writing, though I have included 1 or 2 people from 3 people basically from producing also, because producing of film goes in hand with director, because you produce a film of a director. So they also need to understand a little bit about it, though their course curriculum and thing is totally different from direction people. But I have just asked them in case they would like to be, so they can. So as the name of the course is Direction and Screenplay. So there are 2 aspects to this particular course. One is a director and another is a screenplay. So director would direct a script, and it is believed that, and it is a dispute also and debate also, but it is believed in FTI that a director should be able to write a script. But there are certain qualities which are required to be a scriptwriter, and to become a director, there are some other qualities are required. So there is another course which is only writer's domain, which is what they call a screenplay writing, where you are not supposed to be a director. But a director is also supposed to be a scriptwriter. Okay, but a scriptwriter is not supposed to be a director. So there is a difference between both the courses. As a screenplay writing student, you could be just a scriptwriter. You don't need to be a director. And as a direction, as a scriptwriter, as I said, as a scriptwriter, you can be only a scriptwriter. It's a very introvert job where a scriptwriter is supposed to read a lot, think a lot. It is more of an introvert's job. And a director's job is more of an extrovert job, where he has a screenplay, which you need to pitch to someone to produce it, and then to see that it is also being, he's a team leader, where he is heading a team of 10 important departments. And then he'll be making an entire film, responsible for everything, and then finally also to the screen. If the film is just directed and produced and never go to the screen, it has no meaning. So director is supposed to have a multiple capabilities, while scriptwriter is only supposed to be only a scriptwriter. He can be very quieter person, not an extrovert person, very introvert. So both are different things. So the people who have applied for direction and screenplay, both the capabilities will be checked. One, capabilities to write a screenplay, and another capability is to direct a screenplay. Writing and directing both are different things, though they are connected with the same thing called script. So in previous year, I have interviewed 1 or 2 people who are direction graduate, and I have realized that they pay a lot of attention to writing. Even if you're a direction student, they pays a lot of attention to writing. Now, even if it is going to be online, these exercises can be still asked to do it, and how they would do it. It's not a very tricky game. They might give you 30 minutes time, for example, and ask you to keep your cameras on so that you don't disappear. And then you also minimize the stuff and you write on the computer and then you send it across to them. So that's the one thing. Now, what they would ask you to write, that's another thing. So if you look into the question paper of screenplay writing as well as direction, it would be a practical implementation of that in presence of a team of people, 3 people normally, in which in the interview thing, there will be a final expert also. And for the orientation thing, there may not be an outside expert, only faculty people might be doing it, but depend upon the availability of the outside. But since it is online, so outside expert don't need to travel. So probably there will be outside experts all the 4 days also. That's quite a probability. Most probably these people outside expert are the ex-student of FTI who are into the direction and who are established in their own way.
So it could be Shriram Raghavan, it could be anybody, depend upon the availability of the time of the person. And so there are two parts, as I said, that the script writing and direction. Now, if you honestly ask me, for so many years after reading so many books, if you ask me what it boils down to is ideation, basically. Whether it is an idea of dialogue writing, whether it is an idea of developing a scene. So the common thing which around which the whole screenplay writing rotate is an idea. So they might give you a situation, for example, like in an examination, they had been given you certain keywords and you develop that keywords into a story. They might give you a situation. For example, I'll just offend asking it, write a 1 minute script without dialogue about donate blood. Okay, I'm just giving you a random example. It could be about save trees. It could be about say no to plastic. I'm just talking about the public service advertisement. So they might give you a theme in which you have to write a 1 minute script, and they might give you, say, for example, half an hour. So half an hour is a thinking time, and writing time is not too much, maybe just 10 lines. So if you could ideate, now you ask me how to write it. Everything is around idea. What is your big idea? How you develop that idea and how you describe that thing into a certain number of words, maybe 100, 200 or 250. They might give you a maximum limit where there will not be any dialogue. And again, writing in Hindi versus English is totally up to you. If you're good in typing in Hindi, you could do that, because at the end of the day, you also need to present your thing. ऐसा नहीं है कि भेज दिया और फिर अपना सो गए आराम से और वो पढ़ते रहेंगे सरगत का. So you have to write down in a Word file, either in Hindi and English, and convert it into the PDF and to them. They might give you a certain stipulated time of 30 minutes or 40 minutes, depend upon the situation to situation. So as I said, there will be collective exercises, and there are certain exercises which are individualistic exercises. In direction, I doubt there would be a collective kind of exercise would be there, but collective could be just asking an opinion about a film, or as I said, that they will not be showing a film. Somebody was telling in the morning, but probably they might, for a direction student, they might show a ad. Last time it did happen that they shown a small ad film and then they discuss about that, or they might ask you about in terms of the soundtrack design, discuss the soundtrack of this ad film, for example. What kind of sound did you hear? And they might ask you a note about performance or a shot taking. I remember long back, somebody asked a very stupid question, and the stupid question has a very intelligent answer. Somebody gave it. The question was, what is the job of a director? What is the job of a director? It's a very stupid question, but very intelligent answer somebody gave it. He said the job of a director is to see that everybody else is doing his job. Job of a director is to see that everybody else is doing his job. That's the job of it. So if I'm a director on the set, I need to see whether art director has set up his set is correctly or not. Costume designer has come out with the correct kind of costume, colors and all that is there. Cinematographer has done the correct kind of lighting or not. Is the editing is being done properly or not? My sound is very crystal clear or not? So all these head of the department are doing their job properly or not. That is one of my job. One of my job, not everything, but to connect all the departments, to lead the department, to guide those departments as per my requirement is one of my job. So you need to prepare in a sense, as I said previously also, what they would be checking now. As a script writer, your capability to write. Write does not mean a flowery language of literature. Write means FTI pays a lot of attention to the visual writing, in which dialogue would be less. A good script writer is one who could describe something visually. So that is what their intention is. But they might ask you to develop a scene with the dialogues also, because screenplay writing is not just a visual writing. It is also, in a broader sense of the term, a dialogue. Or I would say 80% of the time it is a dialogue writing.
20% of the time, very few people are Chaplin kind of tradition. Most of the time it is dialogue oriented game. So dialogue writing is an important part, but definitely it is much more visual writing which FTI promotes, and that's the capability they would look into it. So they might ask you to describe a scene, any situation from your memory, where your skill as a writer in terms of imagination. Again and again, I'm saying, not the flowery language of English literature graduate. You could be a science graduate, and you should be able to describe it in Hindi or English, whatever is the language. It is more of an idea which you describe rather than the grammatically correct English or Hindi. They are not much bothered about that. If, of course, if it is good, if it is there, it is good. But if it is not there, I'm much more interested about the idea rather than the, your flowery language, ungrammatically absolutely correct language. That is not the primary game. Also, this dialogue writing. You need to understand that it is not a conversation. So dialogue is something which is a little profound, whether it is a structured one or whether it is a unstructured. They might ask you a narrative film, for example, where you are very impressed with the dialogue. Now, for example, if I ask this question to all of you, quote a scene from a particular film and say, for example, 4 lines from that scene which has a impressive dialogue. Okay. So could you please come out just quickly? Anybody would like to reflect? Because it would be a 40 people would be there and they could ask anybody like this, the way I'm asking. So anybody recollect any film and just say 4 lines from that film, which is very impressive to you as a director. Okay, Wali. So sir, there's a line from Bajirao Mastani which I like very much. The character introduction where he says, "Cheete ki chaal baaz ki nazar aur Bajirao ki talwar." Dhire dhire boliye ra. It is a presentation happening over here. I should be able to understand, and not only me, other people should also be able to. Yes. So sir, I'll take it from the start again. There's a particular scene where the major character introduction happens in Bajirao Mastani, where the character Bajirao himself introduces himself after a long shot, arrow shot, where he first tries to improvise, impresses the emperor as to his skill, and then the narrator goes like this: चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते. So the eccentric part was about the accent used by the actor and the very bold words used. They are very much presenting the heroism and add up to the character and establish the machoism and heroism in like very small sentences in the code. Anybody else? Anybody can like out? Yeah. One dialogue from The Godfather, sir. Boliye. I'll make him an offer that he can't refuse. Say again. Just a minute, sir. I'll make him an offer that he can't refuse. I make him an offer which he can't refuse. From The Godfather. Not very impressive, but anyway. हाँ जी. अब मैं आपको एक सीन का डायलॉग बोल के दिखाता हूं जो आपने सुना नहीं होगा शायद कभी, क्योंकि वो फिल्म का नाम है आधारशिला. अशोक आहूजा एफटीआई के ग्रेजुएट हैं जिन्होंने वो फिल्म बनाई है. आई डाउट एनी ऑफ यू वुड हैव सीन इट. उसमें एक सिचुएशन है जिसमें नसीरुद्दीन शाह एज ए डायरेक्टर, वो इस बायोग्राफी ऑफ ए डायरेक्टर की, डायरेक्टर कितनी ट्रबल्स से गुजरता है. तो नसीरुद्दीन शाह ने राइट्स लिए हुए हैं एक राइटर से, और देवकीनंदन पांडे एक्टर है वो, जो कि किसी जमाने में न्यूज रीडर ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर एक खतरनाक न्यूज रीडर के टाइम के तौर पे जाने जाते थे वो. तो छोटा मोटा एक्टिंग भी किया है उन्होंने. तो उसमें सीन है जिसके अंदर नसीरुद्दीन शाह उससे राइट्स ले लेते हैं, और अब नसीर को पता लगता है कि वो राइट जो है स्टोरी के उन्होंने किसी और को बेच दी. तो अगेन ही गोज टू द राइटर एंड मीट, and he has given a token amount of some 11 rupees or 100 rupees, 101 रुपए या 11 rupees का token amount Nasir has already given, but he has not given the final. So when Nasir is about to leave, तो देवकीनंदन पांडे says अपने 11 रुपए लेते, शगुन के अपने 11 रुपए लेते जाइए, शगुन के अपने 11 रुपए लेते जाइए.
एंड नसीर सेज हमारे यहां दिया हुआ शगुन वापस नहीं लिया जाए. एंड ऑन दैट अगेन देवकी नंदन पांडे सेज तो फिर ये शगुन के पैसे मुझे देवी मां के चरणों में चढ़ाने पड़े. एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली इंटरेस्टिंग. व्हाट नाउ नसीर सेज, जरूर अगर देवी मां स्वीकार करे तो. ऐसा नहीं है कि तुमने पाप किया और देवी मां के चरणों में जाके तुम अपने पाप धो लोगे. So this is something which is 25 years later I recollect even today. So dialogue has to have something really powerful enough that for so many years later you could still recollect. So they could ask anything, as I said. Now question is what they would ask me. Very often people say कि भाई क्या पूछेंगे आपसे, and I gave you a little hint earlier. आपने जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, उससे कनेक्ट बात हो. आप बोलते हो कि मेरा फाइन आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कौन सा पेंटर पसंद. आप बोलते हो नहीं मेरे को स्कल्पचर बहुत पसंद है, तो आप बोलते हो राम किंकर वैद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप फिर राम किंकर वैद की ही बात कीजिए. तो वो आपसे पूछा जाएगा पहले, ना कि वो आपको बोलेंगे अच्छा इसके बारे में बताइए. अब आपने वो नहीं पढ़ा तो आप कैसे बता पाएंगे. तो वो आपका क्या इंटरेस्ट है पहले उसमें आपको फॉर्मेट में फिट किया जाएगा, जिससे आप रिवर्स गियर डाल के भाग ना जाए. फिर आपको उसी में धीरे 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 जीरो इन करके पूछा जाएगा. चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसमें आपने 50 स्टोरीज पढ़ी हो. जैसे मैंने उदाहरण दिया, मान लीजिए फणेश्वर नाथ रेणु आपने बोला, तो वहां पर पंचलाइट की बात आती है, उसका स्टार स्टोरी है. तो आपको आपने बोला फणेश्वर नाथ रेणु, तो पूछा गया कौन सी कहानी पसंद है आपको, आपने बोला पंचलाइट. तो बोले आपने पंचलाइट के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, तो आपने वो फिल्म देखी है. अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं देखी, इसका मतलब आप फंस गए, क्योंकि आपने ही बोला है फणेश्वर नाथ रेणु, आपसे ही पूछा गया पंचलाइट आपने पढ़ी है, आपने पंचलाइट पढ़ी है, बट आपने पंचलाइट पढ़ी है और पंचलाइट के ऊपर फिल्म बनी है वो नहीं देखी, तो इसका मतलब आप जो है पूरा काम नहीं करते, आधा काम करके भाग जाते. आपका फेवरेट राइटर है फणेश्वर और आपने पंचलाइट के ऊपर जो फिल्म बनी है नहीं देखी, तो इसका मतलब आप जो है ठीक से चीजों को नहीं पिच कर पा रहे. तो चीजों का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है. तो उन्होंने बोला ठीक है चलो आपने एक और फिल्म देखी होगी, तीसरी कसम. फणेश्वर नाथ रेणु आपका फेवरेट राइटर है, मारे गुलफाम के ऊपर बेस्ड है वो फिल्म. आप बोलोगे नहीं 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 मैं तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा देखा नहीं है. तो ये सब मैं याद नहीं आ रहा, देखा नहीं है, मुझे भूल गया, तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए. 40 लोग बैठे हैं उनको बहुत याद है, उनसे उनको ले लिया जाएगा, आप भूलते रहिए. आप ही ने बोला फणेश्वर और आपको अभी पता नहीं है उसकी 2 फिल्मों के ऊपर कौन कौन सी फिल्में बनी है. तो जो भी आप बोल रहे हैं उसमें हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी फुल्ली इनटू इट, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑथर और अ राइटर फॉर दैट मैटर. आपने बोला कि मुझे कुमार शानी की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, तो आप फंस गए. आपने बोला है कुमार शानी, तो अब आपको पता होना चाहिए कुमार शानी की 6 फिल्मों में कौन कौन सी कहानी पे बेस्ड है. आपको वो कहानी भी पढ़ी होनी चाहिए और आपने वो फिल्में भी देखी होगी. तो जो भी 50 डायरेक्टर नहीं फेंके उन्होंने आपके ऊपर, आपसे ही पूछा कि आपको कौन डायरेक्टर अच्छा लगता है, आपने बोला कुमार शानी. तो फिर कुमार शानी की आपको 6 फिल्मों में से कम 4 तो पता ही होनी चाहिए, और फिर आपने वो कहानी भी पढ़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर कुमार शानी की फिल्म बेस्ड है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि whatever you choose, it is your choice out of the domain, and then you choose and then you should thorough about it. Otherwise it is going to be a half-hearted exercises. You will not be able to impress them with your knowledge of the subject. That is whether it is a short story, whether it is a novel, whether it is a film, whether it is a play, whether it is a painting, whether it is a photograph, it could be anything. Second thing, they can show you certain thing and ask you to interpret. आपको याद हो 2 साल पहले मार्गरेट दुरा का जो है कोई पेंटिंग था, हो सकता है किसी और आदमी की पेंटिंग आपको, अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम खत्म हो गया तो अब आपका वो सब चक्करबाजी खत्म हो गया. आपको कोई फोटोग्राफ भी दिखाया जा सकता है, कोई भी पेंटिंग दिखाई जा सकती है, और उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है इंडिविजुअल एक्सरसाइज के अंदर कि अब आपको जो है अब आप बताइए, लिखिए इसके ऊपर कुछ 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन या कुछ पॉइंट्स लिखिए आप.
तो anything which will give them idea about your intelligence. राइटिंग के ऊपर प्रॉम्प्ट किया जा सकता है, जैसे एग्जामिनेशन एक आदमी जिसका है वेंकट बरमूडे, ये थोड़ा आप अपना ऑडियो जो है प्लीज उसको बंद कर लीजिए, आवाज आ रहा है। हाँ जी, तो प्रॉम्प्ट का बहुत बड़ा खेल है। प्रॉम्प्ट में इमेज जो है बहुत सारे, आप अगर कल से तो SRFTI चालू है, तो SRFTI के लिए तो शायद आप ना कर पाए, बट FTI के लिए जो है, क्योंकि मोरलेस सेम लिस्ट ही है वहां पर, एक साल वाले में कुछ ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो कम से कम FTI वाले केस के लिए आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट देखिए, आपको जो है गूगल में टाइप करिए विजुअल प्रॉम्प्ट, स्टोरी प्रॉम्प्ट, तो उसमें बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। हो सकता है 2-2 लाइन का कुछ टेक्स्ट लिखा हो, उसको आप डेवलप करेंगे। तो वो डेवलपमेंट एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट जो 40 डेज और 80 आवर्स के हमारे क्लासेस हुई हैं डायरेक्शन की, उसमें हमने बहुत सारे प्रॉम्प्ट लोगों को दिए थे, और उसके ऊपर लोग जो अपना कहानी लिख के लाते थे, एंड दैट यूज्ड टू बी डिस्कस्ड फॉर 5 to 6 स्टूडेंट हु आर सीरियसली वर्किंग फॉर इट। तो ये प्रॉम्प्ट वाला खेल जो है दोबारा हो सकता है आपके साथ। आपको कोई सिचुएशन दी जा सकती है और आपको बोला जा सकता है कि आप इसको लिखिए और वहां पर सबमिट करिए। तो उसमें आप चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा वो, और किसी से और से लिखवा के कुछ भेजोगे मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि आपने नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं आप एक्सप्लेनेशन के अंदर फंस जाते हैं अगर आपने ठीक से नहीं लिखा है। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत महान राइटर की तरह लिखें, बट आप कुछ भी जो भी बोला जा रहा है उसको आप जो है ऑनेस्टली अपने हिसाब से जो है कुछ क्वेश्चंस भी आप तैयार करिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा कि रेडी गोइंग फॉर टेक एंड देन देयर इज अ क्लैप पर्सन हु इज रेडी विद हिज क्लैप। So my question is, what are the 6 point or 5 point which are important as a clapper boy or clapper girl you need to remember? You have to be careful about. तो ये बात पूछी भी जा सकती है आपसे और लिखवाई भी जा सकती है। सबों ने क्लैप देखी है, ऐसा कोई महान आदमी तो नहीं है जिसने क्लैप ना देखी हो जिंदगी में। सबों ने क्लैप देखा है, कैमरे के सामने जो क्लैप दी जाती है, करेक्ट? तो ऐसा नहीं कोई आदमी बजा के भाग गया, बोलता है वो, उसको करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो what are the important points which a person who give the clap should know about? वो सब पता होना चाहिए आप लोगों को। FTI expect that if you are coming to do any course, you should have a 20 to 25% understanding of that already, particularly in today's time when there is a Google and YouTube channel. ये FTI उम्मीद करता है। अगर ये FTI उम्मीद नहीं करता तो आपसे फिल्म थ्योरिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फिल्म थ्योरिटिस्ट whosoever you like। तो वो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है आंद्रे बजा का पता है आपको? कुछ पता है तो बताओ, नहीं पता तो मत बताओ, जिसको पता है वो बताएगा। सो दे एक्सपेक्ट थिंग लाइक दैट। अब मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि व्हाई डू व्हेन इट से गोइंग फॉर टेक, रोल कैमरा, rolling, roll sound, rolling, clapper boy would say something and clap. Clapper boy would say something and clap, and then so my question is, when the announcement happen, assistant director announce whether it is a roll camera first or it is a roll sound first. That is my question. बोलिए कौन बोलेगा? Question is, roll camera, rolling, roll sound, rolling, clapper boy would say something, clap, action. There's another way. Instead of roll camera, somebody says roll sound and then say roll camera. So what is the correct order? Roll camera or roll sound? And why? Sir, I don't know for sure. थोड़ा आवाज बढ़ाइए आप अपना। Hello. Sir, I don't know for a fact, but I can estimate that rolling camera should be the first one, because if we have the visual cues, recording the audio sequence in for the editor to understand the audio sequence would be easier. So it should be You said up that to roll my camera is the understanding. first. You are saying roll camera is the Yes. first. Yes, sir. Okay. How many of you agree that roll camera is the first?
कभी दिमाग नहीं दौड़ाया आप लोगों ने, तो अब दिमाग दौड़ाना चालू करो, FTI जा रहे हो तुम, जागो। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, 10,000 बार तुमने सुना होगा, 10,000 बार अपनी जिंदगी में तुमने सुना होगा फिल्म देखते वक्त, रोल कैमरा रोलिंग, रोल साउंड रोलिंग, टक 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 टक, खड़क भाग जाता है आदमी, एक एक्शन। तो क्वेश्चन यह है कि पहले रोल कैमरा होता है या पहले रोल साउंड होती है, और क्यों? तो किसी आदमी ने अभी बताया रोल कैमरा पहले होता है, करेक्ट? हु सेड दैट? हु सेड रोल कैमरा फर्स्ट? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग। हाँ जी, नाम बोलिए अपना, सुनाई नहीं दे रहा आवाज। चलिए, तो सोचना पड़ेगा आपको, उसके पीछे लॉजिक होता है, ऐसे तुक्केबाजी नहीं चल रही है यहाँ पर। So if they ask this question, who are the people who are able to write it correctly? You know? So, और ये गूगल में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ढूंढ के देखना आज ये आज ये क्वेश्चन का आंसर गूगल में ढूंढना, ये आंसर नहीं मिलेगा। मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली समझना आप। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आदमी को एक्सपीरियंस से आते हैं, एक्सपीरियंस की वजह से उसको ये बात पता होती है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। Similarly, as I said, the clap. What are the 5 important points you have to be take care of about the clap? What is reverse clap? तो कुछ भी क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन लिखिए, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते। This is one of the things which you need to practice it. Think of various questions which can be asked in the examination, which they can ask from a director. Those questions are called anticipated question. जैसे मैंने भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक क्लैप को लेके पूछा मैंने, एक मैंने आपसे रोल साउंड रोल कैमरा को लेके पूछा कि क्या ऑर्डर होता है करेक्ट। और क्लैप जब आदमी दे रहा होता है तो वो क्या बोलता है, वहां पे कुछ बोलता है, वो क्या क्या चीजें बोलता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ये 3 चीजें की अनाउंसमेंट करता है, 4 चीज की अनाउंसमेंट करता है। कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा सकता है, कितने टाइप की कंटिन्यूटी होती है, कौन सी किताब आपने कंटिन्यूटी पे पढ़ी है। डायरेक्टर को इन चीजों का पता होना चाहिए। डायरेक्टर, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, डायरेक्टर इज समवन हु शुड नो each and every department to an extent so that he can guide them and get the best out of them. तो एज ए राइटर किसी भी सिचुएशन पे आपसे लिखवाया जा सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पोर्टफोलियो, और हमारा तो पोर्टफोलियो नहीं है, हम क्या करें। तो आप जो है किसी भी थीम पर एक छोटा सा आइडिया अपना डेवलप कर लीजिए। जैसे मैंने बोला कि ग्रो मोर ट्रीज, उसके ऊपर एक पब्लिक सर्विस एड फिल्म का आइडिया आप लिखिए, जो कि 1 पेज का होगा मैक्सिमम, टू प्रमोट, say for example, cycling among the youth, to promote voting among the youth. Let's say for example, write a public service ad about promoting voting. youth जो है वोटिंग के लिए नहीं जाता है, सोते रहते हैं लोग घर में आराम से बैठ के, वोट डालने नहीं जाते। So how to promote the youth for the voting? Write a public service ad of 1 minute, maximum word could be 200. तो आप इस टाइप का कुछ पोर्टफोलियो एज ए राइटर जो है अपना कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट का मैंने बताया आपको, गूगल में आप ढूंढेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे आपको। कुछ थोड़ा वो प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हैं आप, हो सकता है उसी में से कोई प्रॉम्प्ट पूछ ले वहां पर, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते ही होंगे। तो हो सकता है कोई ऐसा प्रॉम्प्ट जो आपने भी पढ़ा हो, उन्होंने भी पढ़ा हो, कम से कम आपको रिकलेक्ट वो हो जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिल्म का कुछ पार्ट जो आपको दिखाया और उसके बाद वो बंद कर दिया, अब आप बोला अब आप इसको आगे डेवलप करिए, अब क्या होगा। कोई सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दी, हो सकता है उसके डायलॉग लिखने के लिए बोला जाए आपको कि अब ये एक सिचुएशन है, ये फिल्म का सीन है, इसमें से आपको 2 मिनट का एक सीन दिखाया, उसके बाद वो बंद कर दिया, एंड दे आस्क यू टू नाउ डेवलप द फर्दर डायलॉग्स। जब आपने सुन लिया अब आप आगे के डायलॉग जो है लिखिए। एज आई सेड कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश का चक्कर नहीं है, चक्कर जो है थॉट प्रोसेस का ज्यादा है, कि अगर आप ठीक से लिख पाते हैं, नथिंग लाइक दैट, और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर नहीं लिख पाते। ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्यों? क्योंकि वो लाइव नहीं है, इन प्रेजेंटेशन वाला जो चक्कर है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल टू एन एक्सटेंट दे विल गेट द आइडिया अबाउट योर कैपेबिलिटीज। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एज ए डायरेक्टर यू शुड बी एबल टू, ए गुड मैनेजर, I say MBA without degree. A director is the one who is a MBA without a degree. MBA without degree का क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं, आप किसी को समझा सकते हैं, आप फंडिंग रेज कर सकते हैं,
आप किसी को एक्ट्रेस को समझा सकते हैं कि बड़ा महान रोल है. So it is all management capability. You are managing a team of 10 leaders of the various departments. Plus at the same time, you yourself is also a creative person in terms of basically you are a writer and you know how to collaborate with other writers to get the best out of that. कुछ anticipated question हो सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म को लेके. OTT प्लेटफॉर्म की राइटिंग और राइटिंग फॉर द टेलीविजन सीरियल, राइटिंग फॉर द फीचर फिल्म, उसके ऊपर कुछ पूछा जा सकता है. डॉक्यूमेंट्री राइटिंग के ऊपर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रीटमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री एंड ए स्क्रिप्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. सेम इज आल्सो वैलिड फॉर द फिल्म. फीचर फिल्म का भी ट्रीटमेंट होता है और फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट भी होता है. तो दोनों में क्या फर्क है? तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस के अंदर लिखनी पड़ेंगी और आप अपना आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑफ एंड वेग वेरियस थिंग्स. तो फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, फेवरेट डायरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक सीन के बारे में पूछा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक डायलॉग के को लेके पूछा जा सकता है, कोई यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें इंटरेस्टिंग वीडियोस बने हुए हैं. अगर आप देखेंगे उनमें से तो आपको बहुत सारा कुछ समझने के लिए मिल जाएगा. हालांकि अभी for SRFTI it is a little late, but I'm sure you must be watching many videos over there. कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी वेग होती हैं और आपने सुनी होती है, बस सुना होता है, पता होता ठीक से नहीं होता है. जैसे मिजॉन सिन. मिजॉन सिन जो है बड़ा अजीब सा एक शब्द है जो लोगों ने कभी ना कभी सुना तो होता है कि हाँ कुछ होता है मिजॉन सिन. मिजॉन सिन जो हमने सुना है क्या वो ठीक से मालूम नहीं. तो कुछ थोड़ा सा इन चीजों को लेके भी आपको आइडिया होना चाहिए. कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई स्टेटमेंट. वेरी ऑफन आई यूज दिस स्टेटमेंट ऑफ अकीरा कुरोसावा के सिनेमा हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए पेंटिंग, it also has a quality of literature, it is also has a quality of theater, but at the end of the day cinema is cinema. तो कोई कोट आपको दे दिया, उसके ऊपर आपसे कुछ करवा लिया. क्वेश्चन भी आ चुका है, गुदात का एक कोट था, उसके ऊपर कुछ लिखवाया था कि एलोबरेट दैट कोट. तो जो एग्जाम में अभी तक रिटर्न में आया उसका दूसरा लाइव एक्शन वर्जन अभी होगा. लाइव एक्शन इन द सेंस कि आपसे फिजिकली ऑब्जर्व करवा के आपसे कुछ चीजें लिखवाई जाएंगी जिसको पढ़ेंगे, फिर आपसे प्रेजेंटेशन भी करवाया जाएगा अगले दिन. हो सकता है इंटरप्रिटेशन के अंदर जो है इमेज भी दी जा सकती है, पेंटिंग भी दी जा सकती है आपको, और आपको जो है कोई कार्टून भी दिया जा सकता है. जैसे मैंने बताया कि अमूल का एक कार्टून का स्टाइल है एडवर्टाइजमेंट का. आई वेरी ऑफन लाइक दैट पर्टिकुलर स्टाइल. फॉर मेनी इयर्स दे आर यूजिंग द सेम फॉर्मेट. तो कोई इंटरेस्टिंग सा इस टाइप का कार्टून जो है, कार्टून एड आई वुड से रादर देन कार्टून. तो एंटिसिपेटेड क्वेश्चन जो है, व्हाई यू वुड लाइक टू, व्हाई इन इंडिया फॉर एग्जांपल most of these films are dubbed in India. Only recently they are using the pilot track record. Earlier it used to be dubbing. So why dubbing was more popular in India rather than Hollywood? Hollywood always prefer the pilot track, but only in India, only after the Lagan, the dubbing is not being preferred, but people prefer the, when 35mm was there, when 35mm was there, people prefer the dubbing rather than the pilot track. So why it was so? तो आपसे कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस, आप एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, अपने आंसर जो है प्रिपेयर करके रखिए. हो सकता है उससे रिलेटेड या मिलता जुलता कुछ आपसे पूछ लिया जाए. हालांकि उन लोगों का इंटरेस्ट इस चीज में है कि something which you may not have prepared already and they ask you on the spot. तो राइटिंग के अंदर सिचुएशन किसी भी टाइप की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ वर्ड्स दिए जा सकते हैं, कुछ आपको प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, इमेज प्रॉम्प्ट हो सकता है, कुछ कीवर्ड प्रॉम्प्ट हो सकता है, और कोई फिल्म का एक छोटा सा सीन दिखाया आपको और बोला गया इसको अब आप इसके बाद अब आपको अगर लिखना है तो आप जो है 10 लाइन डायलॉग के लिख के लाइए. तो वो प्रॉम्प्ट जो है किसी एक्चुअल फिल्म का भी हो सकता है जो आपने शायद पहले देखी हो. ऐसा भी हो सकता है वो फिल्म आपने पहले देखी भी हो और अब आपको बोला जा रहा है. तो नेचुरली जो डायलॉग फिल्म में थे वो तो आप याद नहीं है अब आपको, अब आप अपने तरीके से इसको, और याद है भी तो आप अपना उसको अपने तरीके से आप लिखेंगे. तो दीज आर द बेसिक थिंग फॉर डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग पीपल. कुछ बजटिंग को लेके वो प्रोड्यूसिंग की क्लास है, उसमें हम बात करेंगे. प्रोड्यूसर वाला कोर्स जो एक अलग कोर्स होता है, प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, बट आई हैव आस्क्ड 1 or 2 people to be part of it in case if they want to. तो
this is in brief. Now you specific have a question, I can answer them. Though I can keep talking and talking, but this thing should be also, your queries should also be answered. हाँ जी, बोलिए. Sir, first question is about writing. क्वेश्चन जरा आवाज आपकी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही. Hello, am I clear now? Correct. Sir, first question is that you said we have to write something and we are language independent. So I prefer in English, but when it comes to dialogue or conversation, I prefer using the native language. Native language And मतलब I write it in English. Hindi. Yes. So I write it in English, not specifically in Devanagari. So is that acceptable? Is that all right? It's all right, but I would say that वो जो एक इंग्लिश में लिखते हैं, मैंने उसको कहा, MANA, मैंने उसको, US के वो वाला इंग्लिश नहीं. I would suggest either you use the Devanagari Lipi, Okay. because that give a little more impression. I prefer to read Hindi As Hindi. as a language rather than that English kind of a Hindi. That Okay, I would not recommend, but people do it. At the end of the day, you have to read it out also. It is not just कि उनका सर दर्द है वो पढ़ते फिरेंगे, ऐसा नहीं है. Right. आपको वो पढ़ के भी सुनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी होगा वहां पर, तो Okay, उसमें you should, it is you, और अगर वो लोग भी पढ़ें उसको तो अच्छा है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये गूगल जो इनपुट आता है उसके अंदर ट्रांसलेटर टाइप का, उसको लेके इस्तेमाल करें लिखने के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. The next question is Word file versus the format file. फॉर्मेट फाइल का क्या मतलब हुआ? Sir, I can use some of the tools like Final Draft or नहीं, Drama वो जो Queen. है वो टूल का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको. आप सिंपल वर्ड फाइल में भी लिख सकते हैं, वो फाइनल ड्राफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है. उसमें वो एक फॉर्मेट है बस, डे नाइट ये वो करने के लिए, वो पूरी स्क्रिप्ट के लिए ठीक रहता है. यहाँ पर आपको 2-3 पेज लिखवाए जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आप उसके लिए जो है फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें. बट अगर आप यूज टू हैं तो आप उसमें करके वहां से उसको कन्वर्ट करके वर्ड में और पीडीएफ के अंदर वो उनको भेज सकते हैं. पीडीएफ दे विल प्रेफर, क्योंकि उसमें क्या है, फॉन्ट वगैरह नहीं मिल रहा तो पता लगा चेंज हो गया, हिंदी का फॉन्ट नहीं है. दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट इनटू अ पीडीएफ एंड सेंड इट अक्रॉस, सो दैट ओपनिंग में प्रॉब्लम ना आए. Okay, sir. बोलिए बोलिए. और सर मेरा थोड़ा yes, इंटरनेट sir. लैग हो गया था. सर मैं बस हाँ इतना सा कह रहा था कि आप वो रोल साउंड और रोल फिल्म वाला एक बार बता सकते हैं कि जल्दी से वापस, मेरा इंटरनेट लैग हो गया था. क्या चीज द्वारा बोलिए? रोल साउंड और रोल फिल्म वाला आप एक बार वापस बता सकते क्या हैं? है कि वो आप सोचेंगे दिमाग में, मैंने आधा काम कर दिया आपका, आधा काम आप करेंगे कि रोल साउंड पहले बोला जाता है या रोल कैमरा पहले, और अगर बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है. ये आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के खुजा के जो है थोड़ा सोचिए क्या होता है. ओके सर. What are the question asked in the last year online orientation? I have not interviewed someone, though I knew one person. I have sent the request also that I wanted to interview her. If I receive a answer from her, probably I would be able to make a 30-minute interview, which in any case I would do for sure. If not today, maybe tomorrow. आज या कल के अंदर जो है डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलरली, पहले मैंने डायरेक्शन के किसी आदमी का इंटरव्यू लिया हुआ है, वो वेबसाइट के ऊपर है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप अगर देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको. और अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको वो लिंक जो है भेज देता हूँ अभी सब लोगों को, आप उस इंटरव्यू को देखिएगा. ही इज द डायरेक्शन स्टूडेंट, ही वाज द टॉपर ऑफ डायरेक्शन क्लास ओवरऑल, हु इज स्टडीइंग इन अ सेकंड ईयर एफटीआई. लास्ट ईयर का जो ऑनलाइन वाला था वो चालू ही नहीं हुआ था तो मैंने नहीं दिया. बट सिंस आई न्यू वन गर्ल, सो आई वुड आस्क आदिति, बिकॉज शी अपीयर्ड इन एसआरएफटीआई एज वेल एज एफटीआई. तो पहले ये प्लान नहीं था मेरा, बट अभी सिंस नाउ द प्लान इज ऑलरेडी देयर, सो आई विल ट्राई टू इंटरव्यू हर टुडे इफ पॉसिबल. Otherwise, most probably tomorrow. And if I could manage, which I should be, I would send you the link so that at least it will be helpful for the FTI. Hanji. Sir, You have to shoot a clip. What kind of it would be? अब देखो वो क्या है, कैमरा एडिट एक नाम की चीज होती है कि उसमें आपने मोबाइल से जाके कुछ, आपको एक थीम दिया गया. मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 5 शॉट के अंदर आप यहां से बाहर चाय वाले तक की दुकान में जाना और आपके पास 5 शॉट है और आप एक चाय वहां पे पीते हुए नजर आएंगे. यहां से अपने घर से बाहर जाके चाय की दुकान पे, आपके घर के पास जो भी कोई एक चीज है, मान लो कोई दूध की दुकान है, कोई ढाबा है या कुछ और स्नैक्स की दुकान है, आप वहां तक जाके कुछ चीज लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी एक आदमी को कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो. और आप तो उसमें कैमरा एडिट ही भी पॉसिबल हो सकता है, एकदम शार्प
एडिट नहीं ढूंढ रहे हैं वो लोग. व्हाट दे आर लुकिंग एट इज योर शॉट टेकिंग. आपने कैमरा रखा कहाँ पे, आपकी शॉट टेकिंग की क्या सेंस है. और दे माइट गिव यू अ रेस्ट्रिक्शन कि उसमें कोई कैमरा मूवमेंट नहीं होगा. तो आपने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक कैमरा सेट कर दिया, तो आपका एक सेंस ऑफ फ्रेमिंग उन्होंने पकड़ लिया. समझे आप मेरी बात. तो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट इट. और वो 5 शॉट आपने लिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा. रीटेक भी अगर उसमें ले सकते हैं क्योंकि वो शॉट तो डिलीट हो सकता है आपका. तो और उसके बाद आके आप टाइमलाइन पे एडिट भी कर सकते हैं अगर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा अलाउड है कि नहीं है. तो दैट कुड बी एनी सिंपल एक्सरसाइज. द पर्पस ऑफ दैट एक्सरसाइज शुड बी सर्व्ड, व्हिच इज, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि take a shot in which there is a subject which is of importance, should be given importance in that shot. तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको पर्सपेक्टिव शब्द का आइडिया है क्या होता है पर्सपेक्टिव. तो अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना है मुझे, तो मैं वो पर्सपेक्टिव वाला फॉर्मूला पकड़ूंगा कि वाइड एंगल शॉट होगा, कैमरे के पास क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो फोरग्राउंड के अंदर होगा, और वो फोकस में भी होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं वाइड एंगल इस्तेमाल कर रहा हूं. तो उस क्वेश्चन क्या क्या पर्पस है वो आपको समझना पड़ेगा. एंड द पर्पस शुड बी सर्व. जो एक्सरसाइज है उसका क्या पर्पस, क्या जानना चाह रहे हैं वो ऐसा करके, वो ऐसा करके क्या जानना चाह रहे हैं, क्या 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 उनका एजेंडा है उसके पीछे, क्यों ऐसा पूछा जा रहा है. तो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज हो सकती है कोई भी. आप यहाँ से बाहर की तरफ गए, वो 4 शॉट के अंदर आप कैसे दिखाएंगे वो दिखाइए आप. तो आपने 4 शॉट लिए या 5 शॉट लिए, उसको कंपाइल करके दे दिया, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि शॉट टेकिंग की सेंस है कि नहीं है, हेड स्पेस के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता. थोड़ा थोड़ा चीजों का आइडिया जो है वहां से लग जाता है. तो व्हाट दे वांटेड टू सी इज योर सेंस ऑफ एनीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हो सकता हूँ आपको एक एक्सरसाइज देता, जो हम लोग यहाँ पर बहुत डायरेक्शन स्टूडेंट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, वो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज होती है कि हमने किसी फिल्म का कोई भी क्लिपिंग आप पकड़ लीजिए, एक 30 सेकंड का आप क्लिपिंग निकालिए, वेयर द ओरिजिनल साउंड जो भी है जो उस फिल्म के अंदर ओरिजिनल साउंड ट्रैक इस्तेमाल किया है, उसको हटा के आप कोई दूसरा साउंड ट्रैक उससे मिलता जुलता लगा. तो वो सिचुएशन मैं दे सकता हूं, कोई हैप्पी सिचुएशन भी हो सकता है, कोई चेस सीक्वेंस भी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सैड सिचुएशन भी है, somebody is dead, my father is dead now for example. एंड वो कोई भी सिचुएशन आपको बोल सकते हैं, किसी भी फिल्म का लेके आ जाइए. अब वो ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि हम आपको एक फिल्म की क्लिपिंग बता रहे हैं और वो मेल से सबों को भेज रहे हैं, 30 सेकंड का क्लिपिंग कोई भी. मान लीजिए मैंने रोड टू होम करके एक फिल्म है, वो लिया मैंने यंगीमू का, और वहां से कोई क्लिपिंग वाला पार्ट काट के ओरिजिनल साउंड ट्रैक के साथ आपको भेज दिया. तो आपके ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसके अंदर, ठीक है जी. उसको हटा के आपको उसमें आप दूसरा साउंड ट्रैक लगा सकते हैं. अब उसमें चीटिंग होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं कि हो सकता है कोई म्यूजिक वाला आदमी आप ढूंढ लोगे, उससे बोले यार तू इसको करके तेरे को दे दे, ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है कुछ चीजें. मतलब हर एक आदमी के पास तो एक्सेस नहीं होगा कि कोई म्यूजिक कंपोजर के वो फोन करके बोलेंगे यार तू इसको करके मुझे दे दे. हो सकता है वो आधे घंटे का ही टाइम दें आपको, आधे घंटे में ही कर दो, तो आधे घंटे में हो सकता है वो ना करवा पाए आप इधर उधर से कहीं. तो कहीं ना कहीं वो देख लेंगे कोई ना कोई तरीके से कि ये धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है. तो वो एक तरीका हो सकता है. हाँ जी बोलिए. सर Yes, sir. बोलिए. Regarding the writing practices, so like how paper 2 mein we were given how we are supposed to write a script, and the other one was supposed to be in a more narrative form, like how you write a short story. So if we are given when we are given the assignments during the orientation part, so when they expect us to write in a screenplay format, they would be evaluating the screenplay format properly, right? Like parenthesis, day and night, interior, exterior, all those factors. Try to understand. फॉर्मेट तो एक मशीन का काम है, मशीनरी वाला काम. Yeah. मशीनरी के Yeah. चक्कर में इंटरेस्टिंग नहीं है उन लोगों को. वो फॉर्मेटिंग कोई भी Okay. पैदा कर देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर फॉर्मेट कर देता है, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी बन गए आप लोग. इट इज टू ठीक है. फैसिलिटेट दैट राइटिंग प्रोसेस. बाद में सीन ढूंढना है कि भाई 10 सीन में एक एक्टर है, कौन कौन से सीन है, तो खट 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 वो सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है, सीन नंबर 20, 40 और 72 उसमें ये एक्टर. तो इट इज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस. इट इज नॉट I अ see. स्क्रिप्ट राइटर्स कैपेबिलिटी ढूंढ Okay. रहे हैं आप. देखिए 2 चीजों पे खेल चलता है, इमेजिनेशन पावर और एप्टीट्यूड. 2 चीज चेक हो रही है वहां पे. Okay. आपकी इमेजिनेशन पावर क्या है और एप्टीट्यूड क्या है. उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं, राइटिंग के लिए जी. आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, और आप क्या इमेजिन करते हैं.
दो चीजें I see. का खेल है। तीसरा कोई शब्द नहीं है जिसके आसपास पूरा खेल घूम रहा है। डायरेक्शन में Okay. मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी है, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेवल भी है, कुछ और बहुत सारी भी चीजें आती हैं, बट फिर भी उसमें मैनेजमेंट के अलावा बहुत सारी और इंफॉर्मेशन का लेवल, जैसे मैंने आपको क्लैप के बारे में पूछा, बताइए अब आप क्लैप के बारे में 1 मिनट के लिए, तो उसे पता लग गया कि इसको क्लैप का कुछ आइडिया है कि नहीं। अब ये नींद में तो Okay. सुन रहा है कि भाई रोल कैमरा रोल साउंड एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, ऐसा तो नहीं है। उसका एक तरीका है, पहले या तो रोल साउंड बोला जाता है या रोल कैमरा बोला जाता है। अब वो कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं होगा जिंदगी में कि पहले क्या बोला जाता है, समझे कि नहीं? Right. आज मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तब तुम सोचने बैठ रहे हो यार ये तो सुना तो हमने ध्यान नहीं दिया क्या है ये। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है कि ये ऐसा क्यों बोला जाता है, पहले क्यों बोला जाता है वो, और दूसरा क्यों नहीं बोला जाता वो। तो उससे पता लगा कि ये आदमी जागा हुआ है या नींद में चल रहा है अपना। कभी सुना है इसको Okay. ध्यान से? ध्यान नाम का एक शब्द होता है जिसको लोग बड़ा कैजुअली इस्तेमाल करते हैं, अरे ध्यान से पढ़ो, अरे ध्यान से चलो, ध्यान से करो। ध्यान जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी लाइफ के। कोई भी काम जब आप ध्यान से करते हैं तो आपको पकड़ आती है। फिल्म एप्रिसिएशन के अंदर जब आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तभी आपको पकड़ में आएगा कि ये चीज ऐसे क्यों थी, और हो सकता है वो उस टाइम में ना समझ आए, बट आपको इतना तो समझ आ गया कि ये मुझे समझ नहीं आया, ये True. बात मुझे समझ नहीं आई, इतना तो समझ आया। अब आप आंसर ढूंढना चालू करेंगे उसको, अब उसका आंसर ढूंढेंगे ऐसा क्यों किया किसी ने। अब बात समझे? तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन Okay. देखी जाएगी। कुछ छोटा सा क्लिपिंग दे दिया, जैसे मैं बहुत वेरी ऑफन आई यूज दिस क्लिपिंग ऑफ नाइफ इन द वाटर का ओपनिंग सीक्वेंस है, और वो सिंगल शॉट है और उसके अंदर फिल्टर के ऊपर इमेजेस आती रहती हैं, शैडो वैडो, और उसी शॉट के अंदर जब वो टाइटल खत्म हो जाता है, कट टू यू गेट टू सी द फेसेस विदाउट एनी कट। तो कैसे हुआ Hmm. कैसे हुआ होगा वो? इमेजिनेशन है डायरेक्टर की इमेजिनेशन है, स्क्रिप्ट राइटर की इमेजिनेशन है। वो स्क्रिप्ट Imagination. राइटर ने लिखा होगा या डायरेक्टर ने लिखा होगा, समझे कि नहीं? अगर True. स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया 2 people आर ड्राइविंग इन ए कार एंड गोइंग टू द वीकेंड, तो लिख दिया उसने, एक लाइन में बात खत्म हो गई। तो भी डायरेक्टर सोच रहा है कि इसको मैं कैसे पिक्चराइज करूं, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। Right. Right. एक सिनेमा के अंदर शब्द होता है जो आपकी खोपड़ी में अभी नहीं आएगा, वो है डायनामाइजेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये टेढ़ा चक्कर है, मैं समझा नहीं सकता अभी 2 मिनट के अंदर आपको, बट मोटे मोटे तरीके से आप मुझसे पूछेंगे तो हाउ टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग। ये एक स्पेस है मेरी बैकग्राउंड के अंदर, ये आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसी बात दिखाई दे रही है जो आपके घर में नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है। फिल्मों के पोस्टर ग्लास पे लगे हुए हैं, ये मेरा Yeah. तरीका है अपने स्पेस को डायनामाइज करने का। आपको इस पोस्टर, मेरी बैकग्राउंड से ये पता लग रहा होगा कि एक गंजा आदमी जो बकवास कर रहा है यहाँ पे, इस आदमी का कुछ फिल्म से लेना देना है। ये बात समझ आ रही है आपको? True. छोले Yeah. भटूरे की दुकान में तो नहीं बैठा हुआ मैं, तो आपको कैसे No. पता है कि मैं छोले भटूरे नहीं बेच रहा हूँ? मेरी बैकग्राउंड से। मेरी बैकग्राउंड, अगर मैं चुप हो जाऊं एकदम और कोई आदमी एंटर करे और मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा कि इस आदमी का कुछ फिल्म से लेना देना। Yeah. कैसे पता लगा? कुछ तरीका है उसका। दैट वी कॉल इट एज ए डायनामाइज द स्पेस। मेरा जो स्पेस है मैंने उसको कैसे डायनामाइज किया हुआ। डायनामाइजिंग ऑफ टाइम को कैसे आप डायनामाइज करते हैं, कैसे फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आप देखो ये जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है देखो, उसके अंदर वो टाइम को लेके बड़ा खेलता है। टाइम लाइन एक अलग चीज होती है, टाइम एक अलग चीज होती है। Yeah. किस तरीके से टाइम को मैनिपुलेट करता है और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं, उसकी फिल्म लोगों को समझ नहीं आती है। उसकी फिल्म को देखने के लिए किसी ने मजाक में लिखा, टू अंडरस्टैंड दिस फिल्म आई हैव टू वॉच 10 वीडियोस। तो उसका अपना एक तरीका है, वो करता है अपना। Yeah. फंडिंग भी मिलती है उसको, बड़ी फंडिंग भी मिलती है, बट वो हर आदमी नहीं कर सकता। Yeah. हर आदमी का अपना एक स्टाइल है। एक दो चीजें होती है, स्टाइल एंड फॉर्म। बहुत कैजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं आर्ट फॉर्म। एक शब्द होता है स्टाइल ऑफ मेकिंग। क्रिस्टोफर नोलान का स्टाइल है वो या फॉर्म है उसकी? अब आप सोचना घर में जाके कि ये फॉर्म है या स्टाइल है। Style है. क्रिस्टोफर नोलान बनाता है फिल्म, वो उसका फॉर्म है फिल्म मेकिंग का या उसका वो स्टाइल है? दोनों Right. अलग अलग चीजें हैं। Yeah. Yeah. क्या डिफरेंस है पूछा जा सकता है। कुछ भी चीज जो उनको लगती है, जिसको आपको पकड़ के, अभी ग्रिलिंग होने वाला है, ध्यान रखना। अभी जो है ग्रिलिंग इंटरव्यू है। ग्रिल इन द सेंस आपको पकड़ के झकोरा जाएगा और फिर वो देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना जूस है। Right.
समझे Okay, मेरी sir. बात? तो वो उनका अपना तरीका है, हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है, और I see. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट कांट बी प्रिडिक्टेड. आप अगर कॉन्फिडेंट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 12 साल लग गए ये बात समझने में कि टू बिकम ए डायरेक्टर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन. what you need to have is the confidence. 250 लोग जो फिल्में बना रहे हैं वहां पे, उसमें से 200 लोगों को फिल्म मेकिंग नहीं आती. फिल्म Right. कैसे बन रही है? तो फिल्म मेकिंग आती नहीं है तो फिल्म क्यों बनाए जा रहे हैं? एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी बनाया जा रहा है अपने लोग फिल्में. क्यों? क्योंकि दे हैव कॉन्फिडेंस. हम फिल्म बना सकते हैं, बनी जाती है. जॉब, मैंने अभी एक डेफिनेशन बताई आपकी, जॉब ऑफ ए डायरेक्टर इज टू सी एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग हिज जॉब. तो Doing the बाकी job. लोग ठीक ठाक काम कर दे, उनकी फिल्म बन गई, हो गया काम. Right. So, what I'm trying to say is the confidence. They are looking a confidence in you कि तुम जो है फिल्म बना पाओगे. FTI में एक जोक है जो मैं आपको सुनाता हूं अभी, छोटा सा जोक है, but it's a very relevant joke. कि if you want to become a director, don't do the direction course. FTI के अंदर जो डायरेक्शन के लोग हैं, ये जोक बाकी के लोगों ने बनाया हुआ है कि if you want to become a director, don't do the direction course. क्योंकि संजय लीला बंसाली एडिटिंग का ग्रेजुएट है, वो राजू हिरानी एडिटिंग का ग्रेजुएट. तो एफटीआई के डायरेक्शन के लोग डायरेक्टर क्यों नहीं बनते? तो उसको लेके ये वो है, बट दैट इज नॉट ट्रू, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, बट यस. तो कहने का मेरा मतलब ये, द कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव Right. अ कॉन्फिडेंस टू बिकम ए डायरेक्टर. एंड इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, यू कैन गिव द कॉन्फिडेंस टू अदर्स. बट तुम्हें ही नहीं है, तुम्हारी हवा खराब है, तुम किसी को क्या बोलोगे कि 10 करोड़ का जुआ खेलो मेरे ऊपर? बोल सकते हो? 1000 रुपए तुम्हारा पर्स में अगर 1000 रुपए थे और इधर उधर रखे गए रह गए, तो तुम्हें नींद नहीं आती रात को? तुम किसी के 10 करोड़ डुबो दोगे या 5 करोड़ डुबो दोगे, तो कोई तुम्हें पैसा लगाएगा तुम्हारे ऊपर? तो दैट True. कॉन्फिडेंस के आप 5 करोड़ लगाओ, मैं इसको 10 करोड़ बना दूंगा. बनाऊंगा. You have to 10 portray करोड़ that. बनाओ, लगाओ, मैं 20 बना दूंगा. उसको तो इसी चीज से मतलब है ना. ठीक. दूसरे को क्या लेना देना इस चीज से कि तुम आर्ट बनाओगे, क्रिस्टोफर नोलन वाली बनाओगे या ये बनाओगे? उसका बेसिक जो इंटरेस्ट है वो टू मेक मनी बेसिक, and Yeah. around with this glamorous star and etc etc. So his purpose need to be fulfilled. You as a director take the responsibility that if you put the 10 crore I will make it 20. वो एक अलग बात है कि 10 5 भी ना रह जाए, वो फिल्म बनने के बाद, बट फिल्म बनाने से पहले that confidence you should have. So FTI is going to look into the confidence also. और confidence ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता. कॉन्फिडेंस आपके वॉल्यूम से पैदा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है आर्ग्यूमेंट से. तो कहीं मैंने पढ़ा था, डोंट रेज योर वॉल्यूम, रेज योर आर्ग्यूमेंट. तो जो आप बात बोल रहे हैं उसके अंदर वेट होना चाहिए, ना कि कितनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. आप उसी बात को पोलाइटली, हम्बली भी बोल सकते हैं, और उसी बात को हाथों को नचा नचा के भी बोल सकते हैं. तो हाथों को नचा नचा के बोलने से आपकी बात में वेट नहीं आ जाएगा. वेट कैसे आएगा? जब आप कोई ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे. I'll give you last example and then I'll finish it off because 3 o'clock I need to start. I got introduced to one of the finest critics of this country in Hindi language. हिंदी में उसकी टक्कर का आदमी आज तक नहीं हुआ, पहला और आखिरी आदमी हुआ है. उसके बाद किसी को नेशनल अवार्ड राइटिंग ऑन सिनेमा को नहीं मिला. उनका नाम है ब्रिजेश्वर मदान. तो मदान साहब को मैं फेस्टिवल में टकरा और वो एक फिल्म देख के निकले और मैं किसी और के साथ था, तो किसी और ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप मदान साहब हैं. तो उन्होंने उनसे पूछा कि फिल्म कैसी लगी, फिल्म कैसी लगी, because he used to eat tamaku and all that. So Right. he spitted the tamaku in one side, and it was Amol Palekar's film, whom I like a lot. It was Kairi, and he said something brilliant. And please pay attention to what I'm going to say now. He said, and he reviewed the whole bloody film in a one sentence, with giving due credit to his past work also. He said, some people do BA after doing MA. You know what I said? Some people do BA after doing MA. And उल्टा होता है, पहले लोग BA करते हैं फिर MA करते हैं. So what he wanted to say was, his earlier work was brilliant. better. This Now is- it's gone back to beginner level. This is mediocre. I have added one more line to that, and after that they also go to high school. So Sure. anyway, so what I mean to say is, profoundness is more important.
not the volume. He's a very humble, polite man, hardly is able to impress anyone in his life in terms of his persona, but his thought, very few people have. मरान साहब का आर्टिकल तुम 100 लोगों में मिक्स कर दो, मैं बता दूंगा कि ये वाला आर्टिकल मरान साहब का है. He has that kind of a style of writing. Style होता है. अभी मैंने बोला style of form, दो अलग-अलग चीजें हैं. So he had a style of writing. Style versus form. Okay, चलिए. Just one more follow-up question, sir. Question. After this, do you have class for producing? Producing का क्लास है, वो producing के लोगों के लिए है. उसमें producing, production की बातें होंगी. It will be very boring for you people. But I need that class because I got call from producing only. ये कौन बोल रहे हैं? पुरुषोत्तम गोगोई. आपको मैंने लिस्ट कर रखा है उसमें. घबराओ मत. थोड़ा जाग जाया करो सुबह, चाय वाय पी के थोड़ा देखा करो ईमेल वगैरह. ठीक है? No, I have seen your email, but sir, आपने screen पे का forget about it. You are already Sir, listed over there. सर FTI का स्क्रीन राइटिंग का जो है उसके लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या हम सेपरेट आप एक लेक्चर लेने वाले हैं क्या? स्क्रीन प्ले के लिए नहीं लेना पड़ा, यही लेक्चर था, मैंने पहले ही बताया था. हम थोड़ी स्क्रिप्ट की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे. सो टुडेज लेक्चर इज मेंट फॉर बोथ. सर So for screenplay, I just wanted to have one question. Like a person asked before that if they write in English, Hindi. So what does FTI prefer? I'm more comfortable writing dialogue in English itself, not मैंने MA आईने, but my name आप is लिख लीजिए in जिसमें भी Roman लिखना चाहते English. हैं, वो हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. वो अभी प्रेजेंटेशन का खेल है, वो आप ही को पढ़ना है, आप ही को प्रेजेंट करना है वहाँ पर. Okay. Sir, So language is not a criteria. बोलिए. सर हो सके तो पिछले साल के जो स्क्रीन राइटिंग एंड डायरेक्शन के और सेपरेटली स्क्रीन प्ले राइटिंग का FTI का, इनके पिछले साल के अगर स्टूडेंट्स के अगर इंटरव्यू या फिर कुछ वो मिल नहीं जाता है, केवल डायरेक्शन के स्टूडेंट का इंटरव्यू है मेरे पास, अलग से स्क्रिप्ट राइटर वाले का. ओके सर. Sir, I made a film. हाँ जी, बोलिए. I made a short film of 2 minutes, but now I'm gonna be appearing for the screenwriting only. So shall I keep that handy as part of portfolio or it's not They required? ask, you can do that. Okay, so I should keep handy. If they ask, I can. Okay. सर SR FTI में बंगाली सिनेमा पे क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वहां पर नॉन बंगाली लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ. It has nothing to do with Bengal. It is a national level institute funded by Ministry of Information Broadcasting. It is not funded by the state. Remember it. Okay. Okay sir. Next. It is as good as FTI. FTI is older institution. They are newer one. So, but both Right. are funded by the Ministry of I&B. Central government का funding है. State का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने जगह दे दिया, मैं बात करता हूँ. So since there's still time for interview orientation, should we brush up on film theory and film criticism a bit to get to know about who they are, like Pauline आइडिया हर Kael चीज का and होना Vibhajan? चाहिए. पॉइंटर फॉर्म में बात करो. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4. दैट्स इट. Okay. पूरा किताब थ्योरी मोर ओवर हाउएवर वो सब नहीं. 1 2 ठीक 3 है. 4 दैट्स इट. ये मेरा अपना एसेंस है. आंद्रे बजा के बारे में क्या जानते हो? तुम बोलना चालू कर दिया अपना बक 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 बक, उसका मतलब. पॉइंट 1 2 3 4. What Andre Bazar stand for? A B C D. That's it. ठीक है. Just summarize them. Just summarize them. Essence. 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 बस. विटामिन की गोली. तुम वहां अमरूद लेके आओगे, अमरूद में से फिर उसको निचोड़ोगे, फिर see there's a milk, then there's a curd, then there is this, then there घी कहाँ है वो बताइए. ठीक है. That's it. Okay. Okay, gentlemen. So I hope it was worth listening and paying your 500 rupees. And I'll share some of the link of the video channels with you, which you should keep watching throughout your life, not just for the FTI, but later on also. And I would also try to share something, whatever I could find, which would be helpful for you. At least the interview of that person, if you have not found it so far. Okay. So thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. I have to just talk to the sound recording students also.